माफी चाह रहा हूँ शायद ओके सो सर रेडी है रोलिंग सर क्या कहना चाहेंगे आप यंग इंडिया फाइनेंशियल कॉन्क्लेव के बारे में? आप खुद एक इंस्पिरेशन रहे हैं यूथ के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो पहले माफी मांगना चाहूंगा कि इतना हम लोग वाट लगा के जा रहे हैं प्लास्टिक का, दुनिया भर की चीजों का। बच्चे आए हैं अभी जो उनके लिए जो हम छोड़ के जा रहे हैं, मगर उनकी समझदारी उन बच्चों में है कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है। सारे के सारे लोगों को सारे के सारे लोगों को पता है कि व्हाट इज प्लांटेशन, हाउ टू कीप थिंग्स क्लीन, हाउ टू कीप द रिवर क्लीन बाय नॉट पोल्यूटिंग द फैक्ट्री वेस्ट। बच्चे सॉलिड हो गए मेरे, खाली ये कि हम कितना उनको अभी हेल्प कर सकते हैं हमारे लेवल में जो हमने बिगाड़ा है। हमने इतने कार्बन हम छोड़ के जा रहे हैं, जैसे हम कार्बन, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं गाड़ी में आता हूँ, पेट्रोल जला रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, कार्बन फेंक रहा हूँ, लाइट जला रहे हैं आप इतने सारे, पंखा चल रहा पीछे, कार्बन जला रहा है। तो एक इंसान कितना कार्बन जलाता हूँ एक लाइफ टाइम में, उतना झाड़ लगा के निकल ले। और मेरा एक आखिरी सवाल होगा सर, जब बात यूथ की आती है तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? यही बोल रहा हूँ मैं अभी आ रहे दादा, एक लास्ट क्वेश्चन है, माफी चाहता हूँ। क्या बोला मैं? यही यूथ के लिए क्या मैसेज? यूथ के लिए मैसेज यही है बेटा, अपना जितना अपन कार्बन देने वाले अपनी जिंदगी में इस धरती को, उतना अपने को झाड़ लगाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। माता पिता की सेवा करो, काम पे ध्यान रखो, डिसिप्लिन रखो, सेहत रखो, हेल्थ रखो, और माता पिता को भी काम सेहत रखने पे लगाओ। ये नहीं कि खुद ही वर्कआउट करो, वो भी हमारे सब अपने हैं, है ना? सर हमारे साथ जुड़ने So just go ahead and love it, live your life full बाबा। कल का मालूम नहीं, एक सेकंड के बाद का मालूम नहीं, बिल्डिंग सर पे गिर क्या मालूम है ना? समझ बिंदास खेलो। थैंक यू सो मच। चलो बेटा चल मेरा बाबा, जय जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब यहाँ ब्लॉक मत करो, थोड़ा पीछे चलते रहो, पीछे चलते रहो। थोड़ा सा साइड प्लीज, तुम आगे आओ। जय हिंद। दादा यहाँ पे एक सेकंड। यस Jackie Sir also to please join us for the lamp lighting ceremony. Everybody on that for the lamp lighting ceremony by all the dignitaries. Thank you very much. On that note, to give the opening remark, I would like to invite on the stage Mr. Pradeep, Chairman, Western Region CII, Mr. Vijay Gupta, Deputy Director General CII, our National Chairman from 65 cities of Bharat join you in this landing financial independence conclave. No better city than Mumbai, the financial capital of India, to host us. Friends, it's my honor and privilege to welcome all of you at the Wi-Fi Summit 2025, our annual flagship entrepreneurship summit, where we come together to celebrate the passion, ambition, and commitment of young Indians towards inclusive entrepreneurship. It's not just entrepreneurship at the high levels, it's inclusive across demographies, across geographies, across SECs, to ensure all of us play a role towards a Bharat rising. The testament to Bharat's growth will be when across the spectrum we strive together to create impact. Arun mentioned the Rural Entrepreneurship Program that we had today. Honorable Minister will be happy to know about 15 rural entrepreneurs from across the country were here today. They underwent an entire masterclass by SP Jain professors, and they will be guiding them, handholding them over the coming few months as well to ensure that they gain greater scalability and sustainability in their endeavors.
platforms, we are strongly promoting cottage industries and rural industries, which will form the backbone of a Viksit Bharat 2047. Along with the grassroots, it's absolutely important and imperative that we go global. In the month of September, Young Indians will be leading a strong 40-member delegation to South Africa, shaping global economic and entrepreneurship policies at the G20 Young Entrepreneurs Alliance. These opportunities come with a significant sense of responsibility that young Indians can, will, and should fulfill. Carrying on our conversations from earlier today, I would just like to highlight 3 possibly key takeaways or points for the summit over the next couple of days. First and foremost, innovation, but with a purpose. We spoke earlier today about building to solve and not just building to gain. How can we, as young Indians, and I see extremely young Indians in the audience here today as well, how can we work not only with our members, but our Yuva college students, our Thaler school students, to imbibe a culture of innovation that is solving problems of India today. And via through our challenges, with the ideas, with the Thaler Innovation Challenge, what we try to do is ensure that these challenges towards climate change, for instance, find tenable, sustainable and scalable solutions for Bharat going forward. Innovate with purpose. Secondly, impact, yes, but collaborate for impact. Let us not, if we say that the power of young Indians and the power of Bharat is inclusivity and we celebrate that diversity, let us cut across geographies, let us cut across all borders that there might be for a cross-collaborative approach towards creating impact. This also means that across industries, across private sector, along with the support of the government, we work as a cohesive triple engine, not just a double engine, but a triple engine towards enabling a Viksit Bharat 2047. Lastly, on responsible leadership. Beyond all that we do, beyond all that we achieve, it is extremely important in terms of what we leave behind, what is the legacy that we strive for, and what is it that we bring to our communities at large. The world needs successful entrepreneurs, yes it does. The world needs trailblazing leaders, yes it does. But more than that, it needs responsible individuals. As we strive forward, let us pledge to lead, but lead with integrity. To lead, but to lead with empathy. And most importantly, a deep sense of responsibility, ensuring that the larger good of Bharat and the larger good of the world is always borne in mind. The Wi-Fi Summit is not just a day-and-a-half-long event. It is not just a platform. It's a movement. Over the next 2 days, let's exchange ideas. Let's inspire each other. We look forward to learning from you, sharing with you possibilities and solutions that you have answers to, and build lasting networks. Friends, Carpe Diem, seize this opportunity to really amplify all that you strive to achieve via this summit. Thank you all for joining us this evening. Mumbai for having hosted us. I wish all of you a transform. Thank you, Uday. A huge round of applause for our minister. Thank you. भारत माता की। मैं इतने देर से सुन रहा हूँ, जब आया तब से सोच रहा हूँ मैं यंग इंडियंस की प्रोग्राम में आया, और यंग इंडियंस के प्रोग्राम में अगर भारत माता की जय उसकी आवाज आए और इस थोड़ी दीवारें नहीं कांपे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सक्सेसफुल लोग यहाँ इकट्ठे होकर के क्या करें। देखिए, भारत माता की जय जब हम बोलते हैं तो वो केवल औपचारिकता नहीं है। वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट कि हम सबको इस बदलते हुए समय में
भारत माता की जय पूरा विश्व करे, इसके लिए अपने आप को संकल्पबद्ध करना है, अपने आप को नियोजित करना है। वी हैव टू डेडिकेट आवरसेल्फ। सो पुट इन बेस्ट ऑफ योर एनर्जी और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यंग इंडियंस की इस दूसरी राइजिंग भारत समिट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यंग इंडियंस फोरम के चेयरमैन श्री तरन खुराना जी को, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मंच पर उपस्थित श्री अरुण राठौड़ साहब, आदरणीय श्री ऋषि कुमार बागरा जी, मंच पर उपस्थित श्री प्रदीप चैंतल कुमार जी, श्री राहुल सिंघल जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित जगी भाई, ये जितने बच्चे लोग हैं ना, ये जब आपकी फिल्म आई थी तभी इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब आपकी हीरो मूवी आई थी तो मैं 10th क्लास में पढ़ता था। और मैं क्योंकि बहुत छोटे शहर का रहने वाला था, न उस जमाने में इंटरनेट था, न उस जमाने में टीवी था। 1982 एशिया के बाद में देश में टीवी चालू हुआ था। और वो भी सिर्फ मेट्रो सिटीज में था। लेकिन मैं तो एक छोटे से शहर में रहता था, स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था। वो बिना का संगीत वाला में आपके हीरो का डिंग डोंग गाना सुनकर जो स्पंदन पैदा होता था ना, और जो इमेजिन करते थे कि हीरो कैसा होगा, वो जैकी श्रॉफ साहब आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनको यहाँ आने के लिए आप सबके लिए मैं बहुत सारा उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 70 शहरों में फैला हुआ 7,500 से ज्यादा यूथ लीडर्स वाला यह ऑर्गेनाइजेशन, जैसा अभी भाई तरंग ने कहा, ये प्लेटफॉर्म देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का एक प्लेटफॉर्म है। आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया और उसके बाद में जब मैं इस मंच पे आकर के बैठा, मैं आप सबको देख रहा था। आपके और मेरी वय में लगभग 30 साल का फर्क हो। आप 24, 25, 26 साल, 30 साल तक की उम्र के लोग होंगे, मुझे 25 साल आपसे उम्र एक बड़ी, एक पीढ़ी पहले। मैं उस एक पीढ़ी में आए हुए भारत के बदलाव को महसूस कर रहा हूं। हाउ अपॉर्चुन यू आर, हाउ फॉर्चुनेट यू पीपल आर। जब हम लोग स्टूडेंट थे, जैसा मैंने कहा फिल्म को लेकर के जैकी श्रॉफ साहब की, तो हमारे पास में कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ता था तो अपने पेरेंट्स से बातचीत करने का माध्यम इंग्लैंड लेटर हुआ था। एक बार लिखते थे, 15-20 दिन में पहुंचता था और वापस जवाब आता था, तब तक 1 महीना हो चुका था। तब से लेकर के आज आप जिस कालखंड में आप सब लोगों को काम करने का, बढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है, आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली, और आप सब लोग और भी सौभाग्यशाली ज्यादा इसलिए हैं कि आप लोगों को अपने सपनों को पंख देने का अवसर उस समय मिला है जब तकनीकी के इस युग में भारत का परिदृश्य बदल रहा है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं,
मंच पर बैठे हुए अरुण जी है, इन सब सीआईआई के प्रतिनिधियों के अलावा जितने लोग यहां बैठे हैं, अधिकांश लोग उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके जो यात्रा प्रारंभ किया एज एन एंटरप्रेन्योर, उसकी उम्र शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और आप लोग, जैसा मैंने कहा, कि और भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपने उस समय में काम करना प्रारंभ किया जब भारत के सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ। एक लंबी अंधियारे के बाद में एक साथ पूरे भारत को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की कि 2014 में जब लगभग आप सब लोगों ने यात्रा प्रारंभ की होगी और जब देश की आजादी को लगभग 70 साल बीतने को आए, उसके बाद भी देश में 62% आबादी ऐसी थी जिसके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश की 84% आबादी ऐसी थी जिसके पास में पीने का पानी नल से उसके घर में नहीं आता। देश के 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं आती, 4 करोड़ घर। देश के करोड़ों ऐसे लोग थे जिनके पास में घर भी नहीं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी माताएं बहनें थी जिनके घर में कुकिंग गैस नहीं। आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा और इस देश की नई यात्रा दोनों एक साथ शुरू हुई। इसलिए आप सौभाग्यशाली होने के साथ साथ में आप सब लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। और मुझे यहां आकर के इस बात को देख करके प्रसन्नता होती है, दिस फोरम is holistically working to provide a platform to the entrepreneurs right from Kashmir to the Kanyakumari. आप लोगों का ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए मैं यंग इंडियंस फोरम का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबके का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, भारत आज पिछले 11 साल में एक यात्रा पूरी करके उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है जब ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर। अमेरिका के हालात क्या है मुझे लगता है मुझे इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप सबको जानकारी। पूरा यूरोप, आज से 10 साल पहले बात करते थे जर्मनी को छोड़ करके यूरोप, अब तो जर्मनी सहित पूरा यूरोप इधर वो स्टेबिलिटी पर है या उससे या तो एक जगह ठहराव पर है या जो है आपको रिसेशन के दौर में। बहुत सारे देश यूरोप के जो है वो बेलआउट के कगार पर खड़े। जापान जिसकी रोबस्ट इकोनॉमी थी टेक्नोलॉजी की ताकत के आधार पर, लेकिन समय के साथ बदलाव नहीं करने के चलते हुए उनकी इकोनॉमी भी आज जो है वो निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। चाइना जिसने 30 साल तक लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ किया, अब वो भी अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए 4-5% के बीच में बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। और उस समय में जैसा अभी दाओस में चर्चा हो रही थी कि भारत इज द ओनली शाइनिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी which is pulling up which has the capacity to pull up the entire global economy. उस समय में आप सबको काम करने का सौभाग्य होना चाहिए। आपकी यात्रा और भारत की ये नई यात्रा दोनों एक साथ प्रारंभ हुई। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली। एक तरफ जहां भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, देश में नए रेलवेज बने, देश में नए हाईवेज बने, देश में नए एयरपोर्ट्स बने, देश में नए वाटरवेज बने। वहीं दूसरी तरफ देश में नया हाईवे जो है वो खड़ा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि वो देश का नया नर्वस सिस्टम खड़ा हुआ।
आज हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है आज की द मोबिलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, जो आज का कम्युनिकेशन सिस्टम जिस पर काम करता है, वो सबसे सस्ता इंटरनेट और डेटा अगर कहीं है वो हमारे भारत में। हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमने अपना 5G डेटा नेटवर्क को डेवलप किया और आने वाले समय में 6G नेटवर्क दुनिया के दूसरे देश करेंगे, उसके साथ में हम भी कर पाएंगे। आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए। ऐसी सौभाग्यपूर्ण समय में हम सबको काम करने का अवसर मिला। आज मैं टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखूं तो जो मुझे विषय जिसके बारे में मुझे मूल रूप से चर्चा करने के लिए कहा गया था, रिवाइटलाइजिंग भारत थ्रू टूरिज्म एंड हेरिटेज, ए न्यू वेव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं इस विषय पर बात करूं उससे पहले मैं संदर्भ में कि भारत की हेरिटेज को किस तरह से पूरे विश्व ने पहचानना प्रारंभ किया। मैं आपके पास में इस कार्यक्रम में आने से पहले एक आनंद उत्सव में जाकर के आप सब लोगों के बीच में आया और वो अवसर था कि जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एनक्रिप्ट किया है, रजिस्टर। और ये केवल पहली घटना नहीं, पिछले 10 साल में 14 ऐसी भारत की पुरातात्विक संपदाएं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, असेट्स, उनको ग्लोबल लेवल पर उस रजिस्टर में मान्यता मिली। ये इस बात का परिचय है क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम अपनी विरासत का संरक्षण भी करें और साथ साथ में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें। मित्रों, पर्यटन और संस्कृति न केवल मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, मेरा इट्स माई जॉब, इट्स माई असाइनमेंट, ये मेरे दिल के सबसे करीब विषय है। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में काम करने का वर्षों तक अवसर मुझे, सौभाग्य मुझे मिला है। भारत के हर गली में, हर पत्थर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक कहानी मौजूद है। अभी जब ऋषि जी अपनी बात कह रहे थे तब ये चर्चा कर रहे थे कि वेस्टर्न इंडिया जो है, राइट फ्रॉम गोवा टू गुजरात, इन्होंने चर्चा की कि वहां टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है ये कहते हुए ऋषि की थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भारत के हर प्रदेश की अपनी विविधता है, अपनी सांस्कृतिक पहचान है, अपनी सांस्कृतिक खूबसूरती है। और दुनिया में जिस तरह से टूरिज्म का हर व्यक्ति की अपनी रुचि है, अपना सोच है, अपनी लाइकिंग है, हर टूरिस्ट का अपना पर्पज है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पज के साथ टूरिज्म के लिए निकले घर से, भारत के बुके में हर उस व्यक्ति के लिए कोई न कोई फूड उसके लिए है, उसकी रुचि के अनुरूप जो है कुछ परोसने के लिए हमारे पास है। इतनी विविधताओं से भरा हुआ भारत, हमारे पास हेरिटेज है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास क्राफ्ट है, हमारे पास क्यूजीन है, हमारे पास नेचुरल लैंडस्केप है और डायवर्सिटी ऑफ नेचुरल लैंडस्केप है। जो टूरिज्म की ग्रोथ इंडिया में जितना पोटेंशियल है उसके अनुरूप हो सके, उसके बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर हिंदुस्तान में था वो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस किया गया, इट हैज ओपन्ड अ वाइड 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 होराइजन फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन आवर कंट्री। हमने देखा पिछले वर्षों में टूरिज्म सेक्टर जिस ऊर्जा के साथ में उभरा है, पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी सैलानी भारत में आए। When I compare and give this statistics, people can ask me, and young people can, like you, they can question. जब थाईलैंड में 4 करोड़ लोग जाते हैं, दुबई में 2.5 करोड़ लोग जाते हैं, आप हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग आते हैं, या स्विट्जरलैंड में शायद 3 करोड़ लोग जाते होंगे, फ्रांस में उससे भी कुछ ज्यादा लोग जाते होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो 1 करोड़ आप भारत जैसे देश में एक तरफ कहते हैं यहाँ इतनी सारी विविधताएं, इतने सारी ऑफरिंग्स है, उसके बाद में 1 करोड़ लोग जा रहे हैं, इसमें क्या अच्छा है?
जितने भी पीएम कॉम्पिटिटर्स जिनकी आप बात करते हैं, नए डेस्टिनेशन अजरबैजान, टर्की से लेकर के और जितने भी डेस्टिनेशन जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट नो पोटेंशियल ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। भारत की जो डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत है और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है पिछले वर्षों में, पिछले एक दशक, उस इकोनॉमी की ग्रोथ के कारण से और भारत में सरकार की योजनाओं के धरातल पर उतारने के चलते हुए जिस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, इसने भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल को बहुत तेजी के साथ में ग्रो किया। विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, व्हेन आई यूज्ड टू रन अ होटल, हम होटेलियर्स की आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ये अपेक्षा होती थी कि हमारा नाम लोनली प्लैनेट जो है उसमें आ जाए या किसी ट्रैवल बुक में आ जाए, और हमारे होटल में जो है ट्रैवल बुक में आ जाए ताकि कुछ विदेशी सैलानी हमारे यहां पर आ सके। वी यूज्ड टू स्ट्राइव कि हमारे यहां जो है फॉरेन टूरिस्ट आए, वो क्लाइंट हमारे यहां। आज हिंदुस्तान की किसी भी होटल की, बिकॉज दैट टाइम दे वर द पे मास्टर्स, आज हिंदुस्तान की किसी भी होटल 5 सितारा से लेकर 7 सितारा तक वो कोई इस बात का इंतजार नहीं करता कि उसके विदेशी सैलानी आए, बिकॉज इंडियंस नाउ दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर बेटर पे मास्टर्स। दिस इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जिस तरह से हिंदुस्तान की डायवर्सिटी के साथ में हुई है, इट हैज ओपन विंडोज फॉर ऑल द कैटेगरीज एंड ऑल द लेवल्स। जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके पहली बार घर से निकले, जिनके पास में फर्स्ट टाइम दे हैव डिस्पेंसेबल इनकम इन देयर पॉकेट, नेचुरली ऑब्वियसली दे विश, दे प्रेफर टू गो टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस। अभी जब मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, अगर मैं स्पिरिचुअल टूरिज्म को जोड़ दूं तो हिंदुस्तान का कहीं कोई बराबरी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के टूरिस्ट एक साथ इकट्ठे होकर के साल भर में जितने गए होंगे, उससे दुगने टूरिस्ट जो है कुंभ में स्नान करने के लिए 66 करोड़ लोग पहुंच गए। वहां से लेकर के हिंदुस्तान में हर लेवल के टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए, टूरिज्म आउटफिट के लिए, हर लेवल तक के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी इस इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में बढ़ी। 2022 की तुलना में अगर हम टूरिज्म को कंपेयर करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म को हम कंपेयर करते हैं, द ग्रोथ इज 42%। एंड दिस टाइम अगेन इट इज गोइंग टू ग्रो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं, दुनिया में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी इज मोर देन 10%। अभी हमारे भारत में हम लगभग 5-5.5% से कुछ ऊपर निकले, 5 और 6% के बीच में। क्योंकि जब हम टूरिज्म का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं, तब हम स्पिरिचुअल टूरिज्म को निकाल देते हैं, दूसरे जो है बिजनेस टूरिज्म को उससे बाहर निकाल देते हैं, बहुत सारे जो है सेगमेंट्स को उससे कट कर देते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 6% से कुछ कम पर आज हम खड़े। और आज उस मुकाम पर आज हमारी इकोनॉमी खड़ी है जब हम 2 ट्रिलियन से लेकर के 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। 4 ट्रिलियन को क्रॉस करने के बाद में पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी को एनालाइज करने वाले लोग इस बात को मानते हैं दैट वे इंडिया इज ग्रोइंग, it is going to grow and going to go double in every 7 or 8 years. दाओस में भी इस बात की चर्चा की, आप सब लोगों ने, सीआई के लोगों ने भी इस बारे में बहुत सारी बातचीत की। हर 7 और 8 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुगनी हो गई। तो मैंने इसलिए कहा कि आप सब
I'm requesting the rural entrepreneurs, the team of rural entrepreneurs to please get off the stage. And as we say the name, you guys can join us on the stage. Thank you. The chapter name, Nasik, Ratnakar Kokare. Everybody, let's give a hand in hand, please. The chapter name, Erode Mayank Bhutra. The chapter name, YI Bhavnagar, Ekta Rathod. Chapter name YI Bhavnagar again, Himanki Jadeja. I request the entrepreneurs to please just wait for a while near the stage till the time the felicitation is done for the other people. Thank you very much. I'm going to be taking the names, but please just wait for your turn. Thank you, thank you. YI Bhavnagar Kajal Makwana. YI Vadodara Snehal Anil Thapre. YI Raipur Gopesh Kumar. I request the entrepreneurs to please stay off stage till the time the felicitation is done as per the protocol. YI Raipur Gopesh Kumar. YI Madurai Tamil Selvi. YI Mumbai Mr. Sagar. YI Kashmir Shabnam Begum. YI Kashmir Ikra Muhammad. I request everyone to please clap because this amazing set of work is being done by this chapter and of course the rural entrepreneurs right here in the house. Everybody, I request all of you to please give a huge round of applause on behalf of the Kashmir chapter. Ikram Muhammad, can we have you on the stage? On behalf of Kashmir chapter, Rozia Akhtar. Everybody coming all the way from Kashmir right here, Rozia Akhtar. The Bangalore chapter, I would like to invite and congratulate Srimati N. Can we have you on the stage, please? On behalf of the Bangalore chapter, Nisha Rakesh Vishwakarma, many, many congratulations. On behalf of YI chapter Bhubaneswar, let's give it up for Satish Suman. Many, many congratulations. Madam, please. Everybody, amazing set of work done by all the team members and of course felicitated by our honorable dignitaries on the stage. Excuse me, sir. Sir. Everybody, this beautiful mementos is being done by YI Bhubaneswar. These are all the handmade mementos, as you guys can see. These are the beautiful wooden ones, and on behalf of YI Bhubaneswar, kidhar hai aap log? Everybody, can I hear it from YI Bhubaneswar? Come on, make some noise! Thank you so much, everyone. You guys have been such a, kind audience. All the way from Jaipur, we have a special gift on behalf of our baby. That is for our Honorable Minister, sir.
Alright, ladies and gentlemen, as you guys can see, we have the dashing Bollywood personality. Can we have a huge round of applause? You know, we took out time for all of us here, and of course, हमारे young Indians के साथ, see such a grounded person, such down to earth person he is right there. Alright, the young Indians, come on, make some noise! Okay, so Jagu Dada, I would really not, miss this opportunity because my young Indians, they would love to hear out 2 lines from you. और ब्लू बहुत लंबे लंबे से आए। सब कुछ करना बेटा मगर सांस लंबा लेना। सब कुछ करना मगर सांस पे ध्यान रखना। वजन उठा सकते हैं मगर सांस उठाने के लिए दम नहीं किसी के। वजन उठा ले मगर सांस भी कभी उठा लिया करो। बाकी भेजे में ऑक्सीजन जाएगा तो ऐसे ही आग लगेगी और अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे कि उस आग को एक्चुअल क्या मालूम, जितना भी अपन लोग है ना, मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बच्चे लोग को भी और बड़े लोग भी और नवा लोग को भी अपना जितना अपन कार्बन जलाते, लाइट जलाते, गाड़ी चलाते, सांस लेते, वो जितना अपनी जिंदगी में होने वाला है उतना झाड़ कोशिश करके लगा लेगा, बाकी कुछ नहीं। The carbon that you leave, try and just break the fire. That's what I feel. बाकी मेरे को कुछ बोलने का नहीं है। बाबा लोग ने अच्छा बात किया है और मैं आप लोग सबका ना मेरा jagdishshroff@gmail.com मैंने सीरियसली बोला हूँ jagdishshroff@gmail.com भेजना कुछ ना फिर आप लोग अच्छी अच्छी चीजें करते रहो, मेरे को भेजते रहो। मैं अपने हिसाब से अपना झाड़पान लगा ले रहा हूँ और लगा दे रहा हूँ। बच्चे लोग को वही काम आएगा ना, इतना शहर छोड़ के हम लोग जा रहे बड़े लोग और सबके घर में एक टाइगर है, उसका भी टाइगर आएगा, उसका भी टाइगर आएगा। तो सबके बारे में, बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप लोग भी जवान लोग, बड़े लोग, अच्छा लोग, आप लोग का जिंदगी है, अपन आधा खबर में आधा रिलीजन में घुस गए, मगर आप लोग का टाइम है बिड़ो पकड़ के चल, सब चीज दिमाग में ऑक्सीजन डाल और अच्छा काम कर और निकल बस। All my love to you, God bless you and thank you for calling me. Jai Hind and Maharashtra, sir, we are very proud of you. अभी जाकर आया वहाँ पे नवलगढ़ गया, नवलगढ़ करके बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए बेटा। जो नवलगढ़ जयपुर से 3 घंटे की दूरी पर है। वहाँ कहते हैं अपने पांडव आए हैं और उनका शस्त्र वहाँ सूर्य के पानी में और सूर्य कुंड वहाँ पे पानी में डाला और वो बन गया और उनके कहते हैं कि जो भी उनके हिसाब से किया था वो सब समझा। तो नवलगढ़ सूर्य मंदिर है, वहाँ पे सूर्य मंदिर और पहाड़ से पानी आता है, पी सकते हैं और वहाँ स्नान कर सकते। प्लीज जाना, ये जयपुर से 3 घंटा दूर है, बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ से 8 बड़े सेठ लोग आए, सीखने हैं और सबका म्यूजियम लगा हुआ है वहाँ पे, खूबसूरत गुंबज म्यूजियम जरूर देखें। और मतलब चीज ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, ईमेल एड्रेस दिया है, अगर बात करने का तो करना। Everybody, let's give it up for Jackie Shroff in the Oscar! And the young Indians, clap, clap! Louder! Clap, clap! Clap, clap! Clap, clap! Clap, clap! Okay. Ready? Roll? सर क्या कहना चाहेंगे इस पे यंग इंडिया? देखिए, यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ये जो दूसरा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, मैं यंग इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष श्री निरंजन जी को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि भारत हम सब जानते हैं युवाओं का देश है और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास में आज है, भारत के विकसित होने के मार्ग में, भारत के विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यंग जनरेशन का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और होने वाला है। आज जिस तरह से तकनीकी के इस दौर में, जिस
जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को मिलने लगी, उनके हॉराइजन्स बड़े हुए, उनके लिए काम करने के क्षेत्र जो स्कोप ऑफ द वर्क बढ़ा है। मैं मानता हूं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ऐसे सारे लोगों को एक दूसरे से मोटिवेट होने का अवसर प्रदान करेंगे, एक दूसरे से सीखने का अवसर भी प्रदान करेंगे और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए और अधिक ग्रो करके भारत के विकसित होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करने का जो है वो उनको आधार भी अवलंबन भी प्रदान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म ने देश के टीयर 3 सिटीज़ में और नीचे गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियल ट्रेनिंग दे करके, उनको स्किल ट्रेनिंग दे करके, उनको हैंड होल्डिंग करके जिस तरह से सपोर्ट करना शुरू किया, मैं उसके लिए पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देते हुए इनका धन्यवाद करता हूं। एंड आखिरी सवाल सर, यूथ को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे अब जो देश के यूथ है जिस लेवल पे काम कर रहे हैं? देखिए, भारत युवाओं का, जैसे मैंने कहा, युवाओं का देश है और ये जो पीढ़ी के लोग हैं, मैंने अपनी बात में भी कहा कि ये सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं क्योंकि इनको ऐसे समय में काम करने का अवसर मिला है जब भारत बदलाव के रास्ते पर है। व्हेन आवर कंट्री इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जब कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्थान इस तरह के बदलाव, संपरिवर्तन के दौर से गुजरता है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, तब उस समय के युवाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती है और सबसे ज़्यादा उपादेय भी होती है। और मुझे यहाँ आकर के प्रसन्नता होती है कि जब भारत के इतने सारे युवा, लगभग देश के सब कोनों से, सब प्रांतों से, सब प्रदेश से, कश्मीर के सुदूर कुपवाड़ा से लेकर के कन्याकुमारी तक से आए हुए लोग और अटक से लेकर के कटक तक के सारे युवा एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए जब बातचीत कर रहे हैं, ये इस कार्यक्रम के बाद से जो ऊर्जा प्रस्फुटित होगी वो भारत को विकसित करने की इस गति को बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। सर, युवाओं में जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है। देखिए, सरकार पॉलिसी के लेवल पर, जैसा मैंने भाषण में भी कहा कि फंडिंग के लेवल पर भी और इस पूरे इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए सरकार काम करती है। उसी का परिणाम है कि 2014 में जहां देश में स्टार्टअप्स की संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती थी, आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है और आज देश में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, फंक्शनल है और देश में जो है लगभग 150 के आसपास अब यूनिकॉर्न्स हैं। थैंक यू।